को शिकार, शेर के बच्चे को शिकार और बनिए के बच्चे को व्यापार कभी सिखाया नहीं जाता, क्योंकि गॉड गिफ्टेड होता है। तो आइए अब और आगे आपकी जो बिजनेस की इतने वर्षों की जो ये जर्नी है उसको और ज़्यादा डीप में लेकर जाते हैं, और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है कोई भी चीज़ में। और आजकल जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट में। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसको मॉडरेट करने के लिए मैं हमारी मॉडरेटर को इनवाइट करना चाहती हूँ ऑन स्टेज, जो कि फाउंडर ऑफ कनेक्ट, को फाउंडर ऑफ ऑकुटो भयाये एंड बुयाशी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी टू वेलकम मिस नायिका अग्रवाल ऑन स्टेज। Namaste everyone, Jai Agrasen. So I would like to invite the entire panel first and then I'll give a small introduction. पहले मैं उन सबका introduction दे दूं जो मुझे यहाँ join करने वाले हैं। तो I would like to call Yogita Bansal Ahuja ji. She is the founder and director of Story Circle Edu Sarthi, social impact and entrepreneur and TEDx speaker. She is a teacher training platform that enables women homemakers and teachers to become storytelling educators. Yogita ji, can we have you here? She is a management postgraduate and comes with 20 years of work experience across sectors, training and coaching business and educational leaders. She is also a corporate culture and leadership specialist and works with SMEs and MNCs as her client partners. A two-time TEDx speaker, an executive coach, a storyteller, a startup founder, a doting mother and an explorer of life. Yogita has skilled more than 7,000 corporate professionals, 10,000 women homemakers and teachers, and touched the lives of 50,000 children through her work already. Can we have a round of applause for her? Okay. Now can we have Upasana Chaudhary ji, chairperson of Help Foundation Ladies Wings. She is a young and talented woman with a dream to support society, especially women. By qualification, she is a MCom, B.Ed, and pursuing PhD. She is pursuing doctorate PhD on women empowerment. She is also a co-founder of an education institute, UC International Institute of Professional Learning and Research LLP, an ISO certified institute working for skill development and job placement. She is also a chairperson of Help Foundation Ladies Wings, an NGO working for the betterment of society, where HELP stands for Health, Environment, Learning, Protection. Under her leadership, Women Wing have achieved great success to empower women. She is mentor and executive director of Connect 7, stands for Confederation of Women International Network. Can we have a round of applause for her also? Now can we have Nisha Saraf with us, co-founder of Ratios, at Home, a home decor store at Corporate Road, Prahalad Nagar, owner of The Knot Diary. Can we have a round of applause for Nisha ji? Now I would like to invite Krishna Agrawal ji. She works as a social worker and has been working for 30 years, and most of you maybe know her, and she has done such a wonderful work for the society. वो काफ़ी शादियाँ करवाती है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए काम करती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, वाटर कूलर्स लगाती है, सिविल को पूरी एक तरह से उन्होंने संभाल रखा है. सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. सो मेरे बारे में मैं पहले, अब इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी. मेरा नाम नायिका अग्रवाल है, मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ, एंड आज मुझे कई प्लेटफॉर्म से मैंने बोला है, काफ़ी बातें की है मैंने, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, क्योंकि मतलब अग्रवाल बंधुओं में बोलना हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ कि आप में कितनी बुद्धि है. आपकी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, आपके मेरे चाचा से मिलती है, किसी की मेरे ताऊ जी से मिलती है, तो आप लोग ये समझना कि आप ही के परिवार की कोई यहाँ पे खड़ी है और उसकी गलतियाँ वैसे ही माफ़ करना. तो थैंक यू सो मच. मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है औरतों पे, एक सुनाना चाहूँगी, आप लोग इरशाद बोलना.
अंतरिक्ष के कण कण में पैबस्त कल्पना, अंग्रेज़ों से लोहा लेती झांसी की महारानी, पुकार रही है स्वतंत्र भारत की भूमिजा को, शालीनता से उद्घोष कर नव भारत निर्माण करो। उठो नारी उठो, तुम ही इस विश्व में सब स्वच्छता अभियान करो। जब जब दुष्ट रावण ने कुदृष्टि डाली है, त्रिनका ओट ले सीता ने लाज बचाई है, पर समय नहीं है छुप जाने का। अंधकार को दूर कर नारी तुझे नया सवेरा लाना है। एक माँ को आज काली बनकर भ्रष्टाचार के रक्त बीज को वंश समेत खा जाना है। थैंक यू। सो नाउ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। मैं इन आदरणीय नहीं इट्स ओके इन आदरणीय हमारे पैनलिस्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिससे बहुत कम लेडीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन जितनी भी है शायद वो प्रेरणा पा सके एंड जेंट्स प्रेरणा पा सके कि वो अपने घर से लेडीज़ को बाहर भेजें और काम करवाएं, और जितनी लेडीज़ हैं वो घर से बाहर निकल के काम करने की इच्छा अगर हो उनके मन में, तो हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इन लोगों से, होपफुली आप लोग इनका तालियों से आंसर्स का स्वागत करेंगे। सो योगिता जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी। आपको क्या लगता है कि जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, और उसकी ज़रूरत, उसको अपन कैसे उसको दूर कर सकते हैं, और कैसे उसको जेंडर डाइवर्सिटी को अपना सकते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी अपन अपना के उसको अपन, जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब बताइए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती पूरा। थैंक यू नायिका जी। हाँ। जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब जानना हो तो सामने हमारी ऑडियंस में ज़रा नज़र डाल के देखें, जेंडर डाइवर्सिटी है कि नहीं है। आपका क्या कहना है? नहीं है। बहुत कम महिलाएं, जैसे नायिका जी ने कहा, और बोलते हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अग्रवाल समाज की महिलाएं भी निकल के, अपने घर से निकल कर, हमारे जो अग्रवाल समाज के आदमी लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर भी बैठें और फैक्ट्रीज़ में भी जाएं, और जो भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या और भी हमारे बिजनेस हैं, सब में उनका योगदान हो। मैं एक बहुत आई एम अ स्टोरी टेलर, तो एक छोटा सा अपनी ज़िंदगी का वाक़या बताती हूँ। मैं पंजाब के एक बहुत छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी और बिज़नेस फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। पहली लड़की थी जो घर से बाहर पढ़ने की इच्छा रखती थी, और मेरे पापा ने, मेरे लिए वो जेंडर डाइवर्सिटी थी कि मैंने अपने पापा को बोला, पापा 10th के बाद यहाँ पे तो कोई स्कूल है नहीं ढंग का, तो क्या मैं चंडीगढ़ या दिल्ली जाके पढ़ सकती हूँ? तो पापा ने मुझे सिर्फ इतना कहा, बेटा नंबर ले आना, बाकी सारे समाज से मैं लड़ लूँगा। तो मेरे लिए जेंडर डाइवर्सिटी की शुरुआत वहाँ से हुई, और क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी मदर ने हर टाइम पे पीछे से सपोर्ट किया कि हमें नहीं पता कि तू क्या करना चाहती है, पर जो भी तू करना चाहती है, जितना भी पढ़ना चाहती है, हम तेरे साथ हैं, और अगर लड़ना पड़ा तो पूरे समाज से लड़ेंगे। तो वो जेंडर डाइवर्सिटी में पहला जो रोल है वो पिताजी और माताजी का रहता है। उसके बाद समाज के जो भी बाकी के सपोर्ट, एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स का रहता है, ताकि इस बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे आके हम सारे ज़्यादा महिलाओं को देख सकें। थैंक यू। हेलो, फैंटास्टिक आंसर योगिता। अभी मैं उपासना जी से पूछना चाहूँगी कि जेंडर डाइवर्सिटी का अपन अपनाते हुए वो आ जाएं, अपने साथ में काम करने लग जाएं जेंट्स के साथ, लेकिन एक औरत दूसरी औरत को कैसे सपोर्ट कर सकती है? आई मीन अगर वो बाहर निकलती है तो घर में जो औरतें हैं या बाहर जो औरतें हैं वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकती थी कि वो आगे बढ़े? सबसे पहले जय कृष्ण महाराज की, जय माधवी माता की, एंड थैंक यू ABC फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आपका जवाब मैं कुछ चंद शब्दों से देना चाहूँगी। नारी अब नहीं है बेचारी, बन गई है व्यापारी और पड़ती है सब पर भारी। सबसे पहले तो वी एज अ वुमेन नीड टू ब्रेक डाउन द लेगेसी ऑफ नॉट सपोर्टिंग द वुमेन। ये जो 3 शब्द होते हैं ना, मैजिकल वर्ड्स, मैं हूँ ना,
ये एक बहुत मेंटली सपोर्ट करते हैं किसी भी विमेन को। आप किसी भी विमेन को फिनेंशियली सपोर्ट मत करो, लेकिन जब आप उसको बोलते हो ना मैं हूँ ना, आई एम देयर, तो वो सपोर्ट उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर प्रोफेशनल सेटिंग्स की हम बात करें कि प्रोफेशनली हम कैसे सपोर्ट करें, तो हाँ, हमें एक वो कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा कोलैबोरेशंस का, हमें कल्चर बिल्ड करने का, रेफरेंस पास करने का। दूसरा, हम उनको मेंटर कर सकते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हम एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। वो एक कहावत है कि अकेले खाने वाला का कभी पेट नहीं भरता और मिलकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते, राइट। तो इसी तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ कोलैब कर ले या एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर मिलकर आगे बढ़े, तो हम सारी विमेंस अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन सकते हैं। एक मेरा छोटा सा सजेशन है, हम जब किसी के भी इनॉग्रेशन पे जाते हैं तो गिफ्ट के जगह अगर हमको सिर्फ 5 बिजनेस रेफरेंसेस देना, तो वो एक्चुअल में हम उनको हेल्प या सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, बहुत अच्छा आंसर लगा उपासना, थैंक यू। निशा जी, अब आपसे पूछना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी स्किल्स है जो औरतों में होनी चाहिए जो उनको काम करने में हेल्प करे? थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके सबसे मिलके। जैसे काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ होती है एक विमेन में होनी चाहिए बिज़नेस परस्यू करने के लिए। वैसे तो अगर एक विमेन घर भी चला रही है तो भी उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कम्युनिकेशन, कि वो अपने स्टाफ से या जो भी उसके बिज़नेस पार्टनर्स है, रिलेशंस है, सप्लायर्स है, उनसे कम्युनिकेट अच्छे से करे। टास्क मैनेजमेंट, पेशेंस बहुत ज़रूरी है होना अपने काम को लेकर। एम्पैथी होना भी बहुत ज़रूरी है कि आज आपके साथ जो काम कर रहा है वो सही तरीके से मेंटल कंडीशन में है नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशनल लीडरशिप, कि आज आप एक लीडर बन के सबको लीड तो कर रहे हैं, बट आपको एक पॉजिटिव तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को भी लीड करना है, कि उनको भी इंस्पायर करना है कि आपका गोल क्या है, ताकि सब मिलके एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। अडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग सिनेरियो, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस हिसाब से हमें अपने आप को भी बदलना है और अपने मॉड्यूलेशंस को, बिजनेस फॉर्मूलाज को भी बदलना है। टीम वर्क होना चाहिए और रिस्क टेकिंग, अनलेस एंड अनटिल आई हैव सीन इन माय बिजनेस कि जब तक आप थोड़ा रिस्क नहीं लेते हो तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाते, तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में, बिजनेस में आती ही है, बट उसको किस तरह से आप टैकल करते हो उससे आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत डिटरमाइन करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर द पॉइंटर्स निशा जी। अभी एक औरत घर से निकली अपनी स्किल्स से, दूसरी औरतों की मदद से, उसको क्या कठिनाइयाँ मिलती हैं अपने बिजनेस में जब वो निकलती है काम करने, तो उसने क्या कठिनाइयाँ फेस करी या करती है, वो आप कृष्णा जी बता सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है औरतों को क्या कठिनाइयाँ आती हैं? जय अग्रसेन। नारी तू नारायणी। आजकल की महिला है तू, जमाने की जनेता है तू, समाज की जनता है तू, आगे बढ़ना हक है तेरा, संस्कारों से संस्कृति की बनी पक्की इमारत है तू, नारी तू नारायणी है। अपने जो लेडीज़ है, सक्षम नहीं है, गरीब है, ब्लाइंड है, HI हैंडीकैप है, या कोई भी है, अपने अग्रवाल बंधुओं की भी घर में सब गरीब भी है, अमीर भी है, मिडिल क्लास वाले भी है, पर उनके लिए अपने को आगे बढ़ना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है वो अपने को उनसे पूछ के सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी बहनें हैं, अपने भाई है। जो उनको अपने मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और अपने अग्रवाल समाज तो इतना आगे बढ़ा हुआ है कि वो एक दूसरों को देख के वो सहन कर ही नहीं सकते, वो उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ ही जाते हैं। तो हम नारी लोग, हम लोग यही चाहते हैं कि हम हमारे समाज की सेवा करें। अग्रबंधु इतने आगे बढ़ गए हैं, अग्रवाल लेडीज़ इतनी आगे बढ़ गई है, एक एक सोशल वर्कर जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है कि उनकी कुछ क्या सराहना करें।
सभी लेडीज़ें अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम कर रही है। और हमारे फील्ड की तो अब मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ जो बैठे उनको सबको मालूम है कि राम श्याम चैरिटेबल बंडल क्या काम करती है। मैं गरीबों का ही पूरा काम करती हूँ, अपने ब्लाइंडों का, HIV हैंडीकैप का। थैंक यू सो मच। Thank you. योगिता, आई विल पास ऑन द सेम क्वेश्चन टू यू। मैं आपको ये सेम क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके हिसाब से महिलाओं को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? थोड़ा सा आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। प्रॉब्लम सबसे पहले तो कि आपको सीरियसली कोई लेगा कि नहीं लेगा। आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं या किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, पहले औरत देखते हैं तो एक अजम्पशन होती है, जो मिक्स ग्रुप हो, विमेन टू विमेन हो तो सब सारी की सारी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बट जब आप मिक्स ग्रुप प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो आपको शुड बी कंटिन्यू? ओके। तो पहले तो कि आप बिजनेस टाइम पास के लिए करते हैं या जब टाइम बच जाता है तब करते हैं घर में बाकी चीज़ों के बाद, तो आपको सीरियसली लेना वो सबसे बड़ी चैलेंज है। उसके बाद विल वेट फॉर अ मिनट। सो या प्लीज कंटिन्यू। तो दूसरा एक चैलेंज आता है कि जो विमेन बिजनेसेस हैं, अगर आप अपने दम पर बिजनेस खड़ा करते हैं, ना कि आप अपनी फैमिली से पैसा लेके अपना काम शुरू करते हैं, तो विमेन बिजनेस को फिनेंस या इन्वेस्टर्स मिलना एक बहुत दूसरा चैलेंज रहता है, क्योंकि एक औरत को शायद एक आदमी से 3 गुना ज़्यादा काम मेहनत करनी पड़ती है उतना ही रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अभी इसी क्वेश्चन को मैं उपासना के पास लेके जाऊंगी। प्लीज। उपासना, मुझे एक बात बताइए कि एक औरत अगर 25-30 हज़ार 50 हज़ार कमा रही है क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टमेंट से खोला है, तो दिस इज मे बी 1 लाख, लेकिन यहाँ पे जितने अग्रवाल बंधु बैठे हैं, आई एम श्योर वो करोड़ों में डील करते हैं, तो वो आदमी उस औरत को इतनी सीरियसली लेगा, आपको लगता है? सीरियसली लेने का ऐसा है कि वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को सीरियसली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। फैंटास्टिक। दुनिया किस नज़र से देख रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया का काम है जज करना, वो कर रहे हैं, हम हमारा काम करते हैं। हमारी नज़र में हमारा आत्मसम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए, सामने वाला क्या सोच रहा है वो अगर हम सोचने लगेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया क्या सोचेगी वो भी हम सोचेंगे तो फिर क्या दुनिया क्या सोचेगी? करेगी? वो तो बोर हो जाएगी। एग्जैक्टली। फैंटास्टिक। सो निशा जी, कमिंग बैक टू यू, हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग है वो औरतों की इक्वालिटी और सपोर्ट के लिए क्या कर सकता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे खुद के बिजनेस में आई थिंक आई वुड टोटली फेवर कि बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल होता है, एक हस्बैंड बोलो या फादर बोलो, जैसे योगिता जी ने कहा कि उनकी लाइफ में भी उनके फादर का बहुत बड़ा रोल था कि जब वो बाहर पढ़ने गए थे, तो उसी तरह से आज मेरे बिज़नेस में भी मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा साथ है, क्योंकि हम दोनों ने ही साथ में ये को फाउंड किया था हमारा जो कंपनी रेशियोज़ है। तो जिस तरह से हम एक विमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाते हैं, पर उतना बहुत ज़रूरी है कि मेन भी उस चीज़ को समझे और वो उतना इक्वालिटी हमें उतना ही औहदा दे कि हम भी आज बिज़नेस कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए विमेन को क्रेडिट देते हैं कि आज आपकी वजह से ये बिज़नेस मेरा सक्सेसफुल हुआ, कि आज आपकी वजह से ये डील मेरी फाइनल हुई, तो उस चीज़ से उसका मॉरल बूस्ट बहुत होता है। दूसरी चीज़ है कि व्हेन यू ट्राई टू लिसन टू वुमेन्स परसेप्शंस ऑल्सो, कि उसके आइडियाज़, उसके पॉइंट्स क्या है, एंड डोंट टेक हर लाइटली एंड डोंट मेक अजम्पशंस। आज वो कुछ अगर कह रही है तो उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाउ कृष्णा जी, आई वुड लाइक टू नो कि यहाँ
काफ़ी महिलाओं से मेरा भी इंटरेक्शन होता है, काफ़ी लेडीज से बात होती है, तो आपको लगता है कि अंग्रेज़ी आनी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस करने के लिए? क्योंकि बहुत लोग अपने आप में हीन भावना लेके बैठते हैं कि मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी भाषा में आप काम कर सकते हो, और अपनी हिंदी भाषा, मातृभाषा, उसका तो कहना ही क्या है। आप गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पर मातृभाषा में जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। भाषा का अहमियत नहीं है, भाषा की कोई अहमियत नहीं है किसी भाषा में। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती इंग्लिश, पर मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरी भाषा से काम कर रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। सही बात है, धंधा आना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए उसमें, फिर वो कोई भी भाषा में करो हो जाता है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी। अभी मैं योगिता जी से पूछना चाहूँगी, क्या ये दुनिया एक औरत को लीडर के रूप में देखने के लिए तैयार है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल तैयार है। जब आज हम 5 लोग इस स्टेज पे बैठे हैं और हमें सब इतने साइलेंस से, इतने ध्यान से, अटेंशन से सुन रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, औरतों पे डिपेंड करता है कि पहली बात जैसे आपने बोली थी कि हम अपने आप में बिलीव करते हैं कि नहीं। मैंने एक छोटा सा कोट लिखा था बहुत साल पहले, विद द पावर ऑफ बिलीफ एन आइडिया टुडे कैन टर्न इनटू अ मूवमेंट टुमारो। फैंटास्टिक। तो उसी तरह से अगर औरत विश्वास करती है कि मैं एक लीडर बन सकती हूँ, तो बाकी की दुनिया जिसमें आपके पति, आपके बच्चे, आपके पिता, आपके एक्सटेंडेड फैमिली और आपके बिजनेस कॉलीग्स जो कि मेल्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। और मैंने ये चीज़ अहमदाबाद में आके खुद एक्सपीरियंस की है। और विनोद भाई, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड क्रेडिट फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योगिता। उपासना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई औरत अपने शहर से बाहर निकल के काम करना चाहे, अहमदाबाद से, अगर अहमदाबाद की है तो अहमदाबाद से करना चाहे, तो क्या टिप्स हैं आपके, कैसे कर सकती है वो? ओके, इस पर मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, वो कहावत मेरे को याद आती है कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मालगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे मालगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे जितने भी अग्रवाल समाज है, बेसिकली राजस्थान या फिर हरियाणा, मैं खुद कोलकाता से हूँ, लेकिन हम फिर भी यहाँ इस अहमदाबाद की पावन धरती पर बैठे हैं और एक साथ मिलकर ABC कॉन्क्लेव अटेंड कर रहे हैं। किस लिए? बिजनेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए और हमारे समाज की एकजुटता के लिए। पर जहाँ बिजनेस की बात आती है तो एक्सपेंशंस तो ऑलरेडी होना ही है। जो आपने बात की आउट स्टेशन में कैसे बिजनेस फ्लरिश करे, तो इसमें पहली चीज़ है कि वो कहते हैं ना, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो मार्केट चाहता है, इन सब का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो इंसान के पास इतना पैसा आता है कि उसे संभाला नहीं जाता है। तो इसी चीज़ के साथ अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है और उसी चीज़ के लिए आपके पास पैशन भी है, तो वो काम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ लेकिन अगर आप आउट स्टेशन सोच रहे हो, तो आपको पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए, अपना फिनेंशियल प्रोजेक्शन करना चाहिए, वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, वहाँ की ऑडियंस कैसी है, वहाँ कैसा मार्केट है, वो सब कुछ सर्वे करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपके इन्वेस्टर्स कौन है, इन सब के साथ जो मेन चीज़ आती है, वहाँ के आप कोई लोकल नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आप वहाँ पहले से ही एक अपना मार्केट बेस बना सको। और लेडी के लिए बाहर वर्क करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। आपको पता है, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आज भी अगर एक विमेन एक होटल में जाके कमरा बुक करेगी ना, तो लोग उसको अलग नज़र से देखेंगे। तो उनके लिए अपने दायरे से बाहर निकल के काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पर ये सोशल मीडिया ने ये इसके लिए बहुत मेजर रोल प्ले किया है कि हम घर बैठे भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। फैंटास्टिक उपासना, बहुत अच्छा बोला आपने, प्राउड ऑफ यू। निशा जी, आपको पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि हर औरत को काम करना चाहिए या हाउसवाइफ होना ठीक है? आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि आई मीन हाउसवाइफ्स आर द बेस्ट, वो तो सब अग्री करेंगे ही। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो क्वालिटीज़ एक हाउसवाइफ निभा रही है घर पे, चाहे वो बच्चों की हो, पति की हो या घर के कामकाज की हो, तो उसमें जो उसका माइंड चलता है या जो टेक्निक्स वो यूज़ करती है, अगर उसके घर का हिसाब करना है, किसको कितना देना है, आई थिंक कुछ क्वालिटीज़ तो ऑलरेडी एक बिजनेस वुमेन में भी है। तो
बहुत बड़ा काम है। अगर जो वर्किंग वीमेन है और जो हाउसवाइफ दोनों चीज़ को बैलेंस करके जो चल रही है, वही सबसे बड़ा आजकल के ज़माने में जिसकी काम जो मर्जी, अगर चाहो तो हाउसवाइफ, ना बिल्कुल चाहो बिल्कुल। तो इफ इट business। इज़ पॉसिबल, येस आई वुड डेफिनेटली वांट कि लोग काम करने जाए, क्योंकि जिसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि उससे आप में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आई वुड मैच्योरिटी आ जाती है जब आप मार्केट में निकलते हो, तो काफ़ी Definitely। आपको चीज़ें सीखने मिलती है। जब जो जूते घर वाले नहीं मार पाते, वो बाहर वाले मार मार के सुधार देते हैं। सिखा देते हैं। सो थैंक यू निशा जी। ये आपसे पूछना चाहूँगी कृष्णा जी, आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न वेयर पहनना ज़रूरी है? आपको लगता है कि महिलाएं साड़ी में अच्छा काम नहीं कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय नारी हूँ, मेरा परिधान साड़ी है और मुझ में मेरे परिधान पे गर्व है। मैं उतने ही बेहतर तरीके से साड़ी में काम कर सकती हूँ। जितना वेस्टर्न पहनकर नारी काम करती है, पहले ज़माने में अग्रवाल महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट निकालकर काम करती थी, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। अपने देश की वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी जी ने साड़ी पहनकर ही पूरे देश के ऊपर राज किया है, तो अपने क्यों नहीं साड़ी पहन के काम कर सकते? वेस्टर्न पहनो, बहुत अच्छी बात है, पर बड़ों का लिहाज करने के लिए, अपनी संस्कृति अच्छी दिखाने के लिए और अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए, तो जहाँ पहनना चाहिए पहरवेश, वैसा ही पहरवेश पहनना चाहिए। नहीं तो अभी थोड़ी पहरवेश के ऊपर बहुत ही तकलीफ हो गई है, बड़े छोटों का लिहाज नहीं रहा है। इसलिए बड़े छोटों का लिहाज के लिए जहाँ जहाँ जैसी जगह है उसी जगह कपड़े पहनने चाहिए, तो उसमें अपनी मर्यादा ढकी हुई है और लेडीज़ों का सम्मान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका इस बारे में क्या राय है योगिता जी? मेरे को लग रहा है कि आपकी कुछ अलग प्रतिक्रिया रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात तो जैसा देश वैसा भेष। जहाँ पे आप हो उस चीज़, उस समय की, उस ऑडियंस की, उस वातावरण की मर्यादा को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने कपड़ों का चयन करना चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे वो जेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव है। और किन किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो और आपका पर्पस क्या है वहाँ पे होने का। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान अंदर से भारतीय है तो अपनी भारतीयता दिखा के प्राउड फील करना चाहिए जहाँ पे भी जाए? मैं एक्चुअली थोड़े से खुले विचारों की हूँ इसमें। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपको अच्छा, आपके मन को भाता है, आप वो पहने, लेकिन फिर भी आप जिस माहौल में हैं उस माहौल को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि आपको भारतीयता में प्राइड होना चाहिए, वो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मैं कंट्री से बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे लिए साड़ी से बेटर और कुछ होगा ही नहीं। पर घर में रहते हुए मैं कुछ भी पहनूं, मेरा मन मेरा घर। तो ये आपने दो तरह की धारणाएं सुनी हैं, दो अलग महिलाएं अलग तरीके से सोचती है। आपको जो पसंद हो वो आप ग्रहण करें। थैंक यू योगिता। उपासना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो लीडरशिप में महिलाएं हैं वो दूसरों के लिए क्या रोल मॉडल बन सकती हैं? उन्हें क्या शिक्षा देती हैं? अगर वो बनती हैं तो वो क्या शिक्षा देती हैं? एंड आपको क्या लगता है जो रोल मॉडल हैं उन्हें क्या शिक्षा देनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप सभी रोल मॉडल है। महिला मतलब ही रोल मॉडल है। वेरी ट्रू। आज मैं बहुत बेसिक्स बोलती हूँ। आज मेरी मदर है या मेरी मदर इन लॉ है, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ दे के फाइनेंस मैनेज करके हमारा अपब्रिंगिंग किया, हमें बड़ा किया, हमें संस्कार डाले। आज वही संस्कार हमारे अंदर है, तो हम उनसे ही इंस्पायर है। तो पहले तो रोल मॉडल हमारी वही है। फिर वो कहते हैं ना कि किसी भी रास्ता, जब कोई भी रास्ता बनता है तो पहले चलने में उसमें कठिनाई आती है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद वही रास्ता हाईवे बन जाता है। तो शुरुआत करने में कठिनाइयाँ तो आती है, राइट। एक और मैं बात बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई पुरुष कमाता है या लीडरशिप रोल पे आता है तो वो अपने फैमिली को पालता पोसता है, लेकिन जब कोई महिला कमाती है या लीडरशिप रोल पे आती है तो वो पूरे समाज को सर्व करती है। वो पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है, आने वाली जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल होती है। अगर बात करूँ मदर टेरेसा को आप ले लो या फाल्गुनी नायर, उनको ले लो जिन्होंने नायका ब्रांड बनाया है।
आज वो अगर ये सारी चीज़ें सोचती तो इतने आगे नहीं आ पाती। महिलाओं के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस होता है, और जिसके वजह से उनके अंदर टॉलरेंस पावर इतना बढ़ जाता है कि वो फेलियर को भी सहन कर लेती थैंक यू है। उपासना, थैंक यू। वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सो लास्ट एक पोएम के साथ मैं एंड करूँगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस वेरी साइलेंटली एंड अटेंटिवली। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इंतहा बाकी है, तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच तहे दिल से ABC की पूरी टीम, अग्रवाल समाज, सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की तरफ से हमें ये सम्मान देने के लिए, हमें सुनने के लिए थैंक यू। दुनिया ने नारी को जब से सम्मान दिया तब से नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया, और ये नारी ताकत को पहचान के आगे निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चेक